वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा फूलों की दुनिया में से निकल आए और कुछ एक और आर्ट की दुनिया में चले, आर्ट ऑफ लिविंग। अच्छा, अब मुझे कुछ नहीं पता है आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, मैं इतना सुन चुकी हुई हूँ। कुछ मैंने उनका खातून का जो हमारी गेस्ट है, मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा भी हुआ है, देखा हुआ है। और अम्मी मुझे कह रही थी कल के, अच्छा तुमने उनसे पहले बात नहीं की, तुम पहले उनसे बात करो, पहले ये हो वो। मैंने कहा कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हो, यहीं पे मैं उनसे बात करूंगी। मैं पहले उनसे क्या बात करके पूरा स्क्रिप्ट लिखूं मैं? So anyway, Shahnaz Minallah is here with us. अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much for joining us. इनसे मैं पूछ चुकी हूँ कि अत्थर मिनल्ला साहब से कोई रिश्तेदारी है आपकी या क्या है या क्या नहीं है। So, शहनाज आप बताना शुरू कर दें कि ये क्या आपने मुसीबत डाली हुई आर्ट ऑफ लिविंग की। लोग जब आप लोग कोई इधर उधर लेके जाते हैं कोर्स, लोगों को होता है भाई एनरोल कर लें हम अपने आप को और हम किसी तरह कर लें। अम्मी ने कोर्स पूरा किया था वैसे? बिल्कुल किया था। अभी वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। अच्छा, हाँ जी। What is this all about? What is art of living? It's about stress management जी, and you know how to learn how to deal with stress. आज का दुनिया में सबसे the one word that has caught over the entire planet right now is stress. ये स्ट्रेस हो कैसे गई है इतनी ज्यादा, ये बताएं। जैसे पुराने लोग कहते हैं कि जी हाय हमारे वक्त तो बड़ा पुरसुकून सब कुछ था, कोई स्ट्रेस नहीं थी, कोई अफरा तफरी नहीं थी, तो ये हुआ क्या है? सबसे पहली बात, वे लिविंग इंफॉर्मेशन एज आ गई है ना जी, इंडस्ट्रियल खत्म हो गई, तो इतनी ज्यादा मीडिया, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसेस है ना, एवरीथिंग इज सो information, देयर इज टू मच इन्फॉर्मेशन जी। सो एनीथिंग हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी ऑल अफेक्टेड. So right now the whole world is like a dynamite. Anything happening in one part, we are all connected. So a new consciousness has to arise now. Because anything happening in, we're all connected. So we now can't only think of one nation. We can't only think of Pakistan now. हमने broader. Have to think about the comity of nations. We have to think of the whole world now. You know. So, and in order to deal with the world and our thing, we have to go beyond boundaries, beyond borders, beyond religions. It's all about dealing with human values right now. You know, just not having a limited value or limited vision of just a nation or just one religion. You have to, have a commonality. You have to see the commonality in all religions and celebrate the differences. Do you understand? This is another approach. Celebrate the differences. Celebrate the differences. Because if all people with the same, thought pattern and saying the same thing are sitting on a stage, so that would be very boring. The fun is जब differences हो, diversity हो, और हर कोई अपना बोल रहा है, और फिर you have a culture of dialogue, फिर मजा आता है ना जी, कि हर कोई अलग अलग बोल रहा है, and that is the fun of life ना जी. To go deeper into whatever belief system you are from, but broaden your horizons. Do you understand? Now you can only do that. मुझे लग रहा है आप खुद बड़ी डिबेटर होंगी स्कूल में. No, जी, I never knew how to speak. In fact, I never. No, you're speaking so well. I never knew how to speak. By the way, I never knew how to public speak in front of 4 people. I used to be petrified. अच्छा. And now I teach people that for God's sake, confidence. You have to come when you come from a space of truth. And deep, we all have a deep inner space and silence within us. हाँ जी? So this is what the course teaches you. It's inner journey. अच्छा, पहले अपना तो बताएं ना, अभी कोर्स की तरफ आते हैं फिर से. अच्छा जी. आप तो बताएं ना, अपना बैकग्राउंड बताएं. और आप इसी हुलिये में रहती हैं हमेशा? नहीं, जब मैं taking a course है ना, basically आजकल मैं living in white and black. Don't ask me why. अच्छा. और रात को जाती हूँ तो एक शॉल कलरफुल ओढ़ लूंगी या कुछ. अच्छा, तो इसका मतलब शॉल्स की शौकीन है, शॉल्स की कलेक्शन है. हाँ जी. और साथ उसके मैचिंग हारों की. ये भी एक हार एक्सपर्ट खड़ी हुई है, ये भी जगह जगह से हार निकाल रही है. अच्छा, नहीं तो शहनाज आपका क्या है? What have you studied and how did you get into this? Studied and did the typical bachelor's and was going into a master's and got married at 21 and all that. But I got into this when all hell breaking loose. I didn't know the meaning of life. I didn't know why I was here on this planet. अच्छा. वो नहीं होता जब आप उठ रहे हो और बैठ रहे हो और बस वही लोगों से मिल रहे हो और आपको पता नहीं है कि आप क्यों ये कर रहे हो. और बच्चे मेरे बड़े हो गए और वो घर से जा रहे थे, फिर मैंने कहा अभी कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? बेटा बेटी. So कितने बड़े? Now my daughter is 27 and my son is 25, mashallah. But when they were leaving home, I tell this now to every woman. Well, I won't be gender this thing, but when in my course, what do you do जब आपके बच्चे घर से जा रहे हो, माँ बाप आपके मर रहे हो? हाँ, एक empty nest की आपको फील. और मेनोपॉज अपीयर हो रही है, तो फिर औरत ज़ात करे अपने साथ. That's when you need more people. We all need to be needed in life. So when we limit ourselves just to a family and just they leave you.
ऑफ कोर्स ये तो एक अल्लाह ताला का निजाम है, इट्स नॉट इवन दैट दे लीव यू लाइक दैट, मतलब वो एक जाना ही है उनको. हाँ. I remember, you know, my khala must be watching the program right now. I used to cry. I said, Auntie, what's the purpose of my life? Who am I? And she says, what do you mean, Bache? You're the gel of the family. If you're not there, you hold everything together. And it's a big responsibility, no? But you have to know yourself before you can be there for anybody on planet Earth. The closest You have relationships. to be there for yourself. You have to be there for You have to be yourself. very comfortable with yourself. You have to be comfortable with yourself before you can be good for anybody else on Earth. सही. Close relationships and everybody, and nobody can help you unless you know you don't find it within. And we need a technique, ji. We need help in life. Everybody says don't be angry, don't be jealous, don't be negative, don't be depressed, but nobody teaches you how. करना किस तरह? कहना तो बड़ा आसान है. हाँ? So then this technique came into my life and I got. अच्छा, ये क्या, तो ये टेक्निक, ये तो कोई इंटरनेशनल टेक्निक है, जी, ये कब yes. से ये किस्सा शुरू हुआ वैसा? This is started in 1981. हाँ? अच्छा, किसने शुरू किया था? He's a person called Sri Ravi Shankar, living in अच्छा, Bangalore, India, अच्छा, ठीक है. but he's spread over the world now, you know. So it has nothing to do with religion. It's a technique, and any religion can imbibe it. ठीक So है. people who've done the technique, you know, their namazes go deeper. तो Because, आपने डायरेक्टली उनसे सीखी है ये टेक्निक? No, we have teachers. We have अच्छा, teachers. उन्होंने कुछ लोगों को ट्रेन किया, फिर train किया उन्होंने हुआ है. आगे से ट्रेन किया. Worldwide फिर ये- teachers हमारे हैं अब दुनिया आपने भर. कितने लोगों को ट्रेन कर दिया? मैंने कोई जी 4000 लोगों को in Pakistan. So it's a beautiful. पाकिस्तान में सिर्फ आप हैं? नहीं, we have 3 more teachers जी besides me. ओके. लेकिन हम लोग दो टीचर्स के साथ हम लोग शुरू अच्छा, हुए. और ये कितने दिन का होता है ये सारा ये कोर्स? 5 शामें होती हैं जी. ट्यूसडे को शुरू होता है, संडे को खत्म होता है दिन के बाद. अच्छा, कितने और से 6 कितने? ट्रांसफॉर्मेशनल दिन होते हैं. Nobody can believe that your whole perception, observation and expression of life can change, but it happens. अम्मी की तो वैसे चेंज नहीं हुई, अम्मी इसीलिए तो मैंने कहा उन्होंने पूरा कोर्स किया. सुने, अम्मी फॉलो नहीं कर रही होगी, डेली प्रैक्टिस नहीं कर रही होगी. वी लीव यू विद अ 20-minute प्रैक्टिस जी, which you can combine with नमाज. ठीक है ना जी, फजर के टाइम अगर करो तो इट्स आइडियल. ओके. You know, so it purifies you, it energizes you, and it harmonizes you. But just like everything in life, Ammi is supposed to be doing it every day. You मैं know? कर रही होंगी मेरे ख्याल से. हाँ. And we want people to do it for 40 days after the course, because there's something about the figure मैंने form. सुना है बहुत आर्टिस्ट ने भी ये किया है. और Everybody, बहुत- anybody on living on earth needs to be. अच्छा, उन 6 दिनों में क्या होता है, जरा बताएं ना हमें प्लीज. हम एक रिदमिक ब्रीदिंग पैटर्न आपको सिखाते हैं. उससे पहले एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है 50 मिनट का, डे 2 और डे 3 पे. जो चीजें आपने दबाई होगी मे बी बचपन से, वो उभर आती. रिप्रेस्ड इमोशन. So physical stress, mental stress, emotional stress and रूहानी stress जी. We all have stress in the spirit also. ये जो हम रूह को दबा लेते हैं, and you know we don't give the free रूह को, you know, खुला आजादी, and we close it in materialism and we close it in society conditioning and things like that. तो रूह हमारी दुख जाती है जी. You know, we are supposed to live on the spirit level, ठीक है. but no, none of us live like that जी. You know, because we're so caught up in the physical world, materialism, and now ji, materialism is getting boring, to be very honest. Everybody is looking for some new truth, because it doesn't do it for you ji. If I wish money and materialism did it for one, life would be very simple कि जी पैसा कमा लो और बस ठीक है. हाँ. और खुशी हासिल कर लो. लेकिन खुशी पैसे से तो नहीं आती ना जी. You know, सही. acquiring से नहीं आती जी. हाँ. Acquire. So ये 6 दिन. अच्छा, आपने कहा कि पहले तो ब्रीदिंग हाँ जी. So we put you ब्रीदिंग को सही करते हैं आप. So we take you through this long process in which you are released, whether you like it or not. बाज लोग रो लेते हैं, बाज लोग, you know, बहुत सालों का. We have stored stress in ourselves over years जी. You know, physical, mental, emotional and spiritual, as I told you. You know, now sleep removes your fatigue but not stress. So over a lifetime, can you imagine we store stress as toxins in our cells? And the reason we fall ill and have all these diseases is because of stress. Do you know what the definition of disease is, Ji? Dis-ease. When you are not at ease. Ease with yourself. तो अल्लाह ताला ने हमें जी इतनी फैकल्टीज दी हुई है कि एक लाइफ टाइम हम आराम से गुजारें. We are never supposed to fall ill in life. It is all about mismanagement of energy, जी. अच्छा. That. Do you understand? खाने हम गलत खाते हैं, हम सोते गलत है, you know, ख्यालात हमारे, you know, गलत हैं. So these things, the reason why religions tell us to do what they do is just because so that your energy can be maintained. अच्छा, कितने लोग होते हैं कोर्स में? We have about Typically, like an average of 30, you know. 30 होते हैं. 30 और 6 घंटे होते हैं हर शाम. 6 दिन. 3 घंटे. 3 घंटे
पहले तो 6, बिकॉज आई एम श्योर कि लोग इसकी डिटेल में इंटरेस्टेड होंगे, तो इसमें ये साथ साथ बता रही हूँ कि 6 दिन 6 शामें, 6 शामें, उनमें 3-3 घंटे। जी बिल्कुल। और सबसे पहले आप ब्रीदिंग को ठीक करते हैं। हाँ जी। उसके बाद वी टीच यू अ लॉन्ग रिदमिक ब्रीदिंग पैटर्न ना। तो जब आप अपनी सांस को लंबा खींचते हो ना जी, तो उसमें आपके जिस्म में प्योरिटी आती है, एनर्जी आती है, और जो तवाज़ुन खराब हो गए हो ना स्ट्रेस की वजह से, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये सारे इश्यूज, जो भी आपकी इशू है ना जी, वो स्ट्रेस की वजह से होती है। दुनिया में कोई तो स्ट्रेस के बगैर तो नहीं हम रह सकते। हाँ, आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर मैनेज कर सकते हैं जी। आप दुनिया को नहीं बदला सकते, लेकिन द वे यू अप्रोच इट बदल सकती है जी। अच्छा, फिर क्या अप्रोच आप लोग सिखाते हैं, क्या होता है फिर ये? So we teach you knowledge also, and you know people just एक हाल सा उतर जाता है ना, and when a person is stress free, then एक awareness आ जाती है, आगाही सी आ जाती है, everything start getting clearer. Do you understand what I'm saying? It's like fogs lift. एक क्लैरिटी आती है। वो नहीं कहते हम इस्लाम में अकल पे पर्दे आ जाते हैं। That is also because of stress. So nobody is bad on planet Earth. It is only because of stress in the nervous system of every individual. So unless you don't deal with stress, you cannot have communal change. So you cannot change people in life unless you have not removed stress from their nerves. Because so if a glass is full of water or stress, you can't put anything new into it, Naji. You have to remove years of debris, and only then is a person willing to listen. And when a person is willing to listen, only then can they affect change, na? And then can they only take responsibility, and only then can they take action. मुझे लग रहा है कि कैसे शनाज की जिंदगी पूरी तब्दील हो गई होगी ये कोर्स करके। Absolutely जी। 6 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल चेंज। अच्छा प्लीज, ये ऊपर से भी जरा एक तो सवाल आ रहा है कि स्ट्रेस को डिफाइन करें, और दूसरा ये आ रहा है कि उर्दू बोलें प्लीज। अच्छा जी। अच्छा, स्ट्रेस का ये डेफिनेशन है जी, ऑसिलेशन ऑफ द माइंड बिटवीन रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट एंड वरी ऑफ द फ्यूचर। या हम माजी में रहते हैं, माजी का या फ्यूचर, ये कल क्या होगा, हम हाल में नहीं रहते। हाल में, लम्हा मौजूद में कोई नहीं रही। कहना बड़ा आसान है जी, लेकिन आपका दिमाग जो है, हमारे दिमाग की जी 3 टेंडेंसीज हैं। या तो माजी में रहता है, या मुस्तकबिल, या अग्री करता है, या डिसएग्री करता है। ये आप इंसानों की गलती नहीं है जी, ये टेंडेंसी ऑफ द माइंड है। एंड तीसरी टेंडेंसी, इट लव्स टू क्लिंग टू नेगेटिव, मनफी सोच। ये हमारी गलती नहीं है जी। आपको 10 कॉम्प्लीमेंट्स एक दिन में मिले, लेकिन एक बार क्या खूबसूरत चीज हो जी, लेकिन जी आपके नाक में कोई मसला है, पूरा दिन किधर रहेगा जी? नाक में। कि हाउ डेयर ये मेरे नाक के बारे में बात। वो 9 गुड कॉम्प्लीमेंट्स वो तो भाड़ में जाते हैं ना जी, वो तो कोई नहीं सोचे। अच्छा, वैसे मैंने आपके 2 मरीज देखे, मरीज क्यों, 2 आपके स्टूडेंट्स के, क्या कहेंगे आर्ट ऑफ लिविंग करने वालों को, पार्टिसिपेंट्स आपके देखे। एक तो मैं अम्मी का कह रही हूँ कि चेंज नहीं उनकी अप्रोच में, क्योंकि वो करी नहीं ना, प्रैक्टिस नहीं, और एक ये जो बोल रहे हैं ऊपर से ना, इनमें भी कोई चेंज नहीं देखा मैंने, इनके मनफी सोच में, इनके झगड़े कराने के उसमें नहीं, वो जो आप प्रैक्टिस, because we talk about opposite values, you have to have the opposites in you also, no? अच्छा, हामिद साहब के बारे में बात बस मैं नाम नहीं लेना चाह रही। आज तक सबसे अच्छा 4000 लोगों को आपने ट्रेन किया, ठीक है? कितने लोगों ने कहा है कि हमें कुछ नहीं फील हुआ, चेंज नहीं फील हुआ, और कितने लोगों ने कहा कि जैसे उनकी जिंदगी, जैसे आपकी जिंदगी में तब्दीली आई है, उस तरह उनकी जिंदगी तब्दील हुई है? जी बहुत सारे, there are lots of practicing ones, और वही वाली बात कि anything that you stick to in life ना, वो उसका रिजल्ट आता है ना। तो जो लोग करते हैं, कैसे प्रैक्टिस होती है शनाज? अच्छा जी, 20 मिनट की एक मश्क हर सुबह नहाने के बाद। अच्छा, हाँ, तो एक रिदमिक ब्रीदिंग होती है, लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट ब्रेथ्स। हाँ? और वो आप लेते हो, और आप 1 मिनट में, नॉट एज अ कॉन्सेप्ट बट एज अ रियलिटी, लम्हा मौजूद में आ जाते हो। तो लम्हा मौजूद में आने का ये फायदा है कि आपका दिमाग स्टिल हो जाता है। जब किसी का दिमाग स्टिल हो जाता है तो आपको मजा आ जाने लगता है, और खुशी ना माजी में है ना मुस्तकबिल में है, हाल में है। यू हैव टू बी टोटली प्रेजेंट एंड अवेयर टू बी अ हैप्पी पर्सन। डू यू नो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ अ हैप्पी पर्सन इज? जिसका दिल 100% मोहब्बत से भरा हुआ, दिमाग 100% ख्यालों से खाली, और हाथ 100% मसरूफ। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ खुश इंसान। खुशी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिर्फ अवेयरनेस। हर एक चाहे गम भी हो, गम में को आगाही से लेना, उसमें भी खुशी है। एज ग्रुप क्या है? आपको पता है जी, वी हैड अ पर्सन इन द कोर्स द अदर डे इन लाहौर कोर्स, और उसने कहा कि हम ये सवाल पूछते हैं कोर्स में, आप कब खुश होंगे और आपको क्या चाहिए खुश रहने के लिए जिंदगी में? तो बंदे ने कहा जी मैं खुश हूं इवन दो आई हैव लॉस्ट माय सन 27 जुलाई को ऑफ दिस ईयर।
So khushi has nothing to do with a person, situation, event or a circumstance जी जिंदगी में. You can be happy in life without any reason. और हम यही सिखाते हैं जी. हम लोग यही सोचते हैं पूरी जिंदगी कि फलानी चीज हो जाएगी तो हम खुश होंगे, बड़ा घर मिल जाएगा तो खुश होंगे, फलानी नौकरी मिल जाएगी तो खुश होंगे, शादी हो जाएगी तो खुश होंगे, बच्चे होंगे तो खुश हो जाएंगे. हम हर वक्त खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं. एंड हम इस इल्यूजन में रहते हैं कि फलानी चीज हो जाएंगी फिर होंगे. ये एक फॉलिसी है जी. खुशी अपने अंदर आपको ढूंढनी पड़ती है और हो सकती है हर हाल में. हाँ. और बिला वजह खुशी इज द आर्ट ऑफ लिविंग जी. ओह अच्छा, ये तो देखिए क्रक्स पता लग गया. बॉटम लाइन इज कि भाई आप खुश रहें बगैर किसी वजह के. पेन इज इनएविटेबल वो आर्ट ऑफ लिविंग, बट सफरिंग इज अप टू यू. पेन इज इनएविटेबल जी. पेन हर एक इंसान जो पैदा हुआ है उसको पेन मिलेगा. उससे भी डील करने के तरीके हैं. हाँ जी, लेकिन आप जितना सफर करना चाहते हो वो आप पे मुनस्सर है. अच्छा शहनाज, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादातर ये कोर्स करते हैं? फ्रॉम 18 से 80. 18 से 80. वी हैव ग्रैंडफादर आप लोग वो जमीन पे बिठा देते हैं, वो हाँ चौंकड़ी जी. मार के. वो 80 साल वाले कैसे बैठते हैं बेचारे? Then we can give them a chair जी. That's not a problem. That's not an issue sitting on the ground. 80-year-old you can breathe. You know you can. इंसान तो हर कोई लेता है ना जी. So we have grandfathers. अच्छा, और 18 साल से कम उम्र के आप क्यों नहीं? We do this particular course. हमारा एक बेसिक कोर्स होता है, but we have a course from 8 से 14, आर्ट एक्सेल के नाम से बच्चों के लिए. We teach how to. वो बड़ा मजेदार तरीका होता है. 14 से 18, 18 से 24 and onwards. We have programs for prisoners जी. अच्छा. हाँ, prisons मट का होता है हमारा प्रोग्राम. We go to prisons. We go to every affected issue in the world. We reach out to any population जी. Illiterate लोगों का हमारा अलग प्रोग्राम है, corporate लोगों का हमारा अलग प्रोग्राम. आपने सारे किए हैं? हाँ जी. अच्छा, तो आप सारे टीच कर सकते हैं? I can teach all जी. और पाकिस्तान में 4 टीचर्स हैं जी. लेकिन जो टीचर, अब फर्ज करें जिन लोगों ने आपका कोर्स किया है उनमें से अगर कोई ट्रेनर्स बनना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? They have to go through something called our advanced course जी. हमारा advanced course बड़े मजे की चीज होती है. अच्छा. First we have a basic course, ये 18 घंटों का, and then we take you on a retreat. We take you to the most beautiful spot in Pakistan. And we take Which one is that? Various places जी. हमारे अच्छा. पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत जगहें हैं, a secluded, quiet spot जिधर there are no distractions, so no mobiles, no SMS, no किताब, no TV. Okay. We just let you go into your inner space. और उसमें से ये 2.5 दिन साइलेंस में गुजरती है. तो अब बज़ाहिर लास्ट वाला हमारा मरी में हुआ है जी. 60 लोग थे, 66 people from all parts of Pakistan. उन्होंने आपस में भी बात नहीं की? नहीं. And the programs, so the programs are designed from morning till night जी. And it's the best holiday you can ever give yourself on planet Earth. Because आजकल जी छुट्टी में जाना भी एक अजाब हो गया. Traveling is and जिस्म को तो आप चलो छुट्टी दे देते हो, लेकिन दिमाग को कौन छुट्टी देता है? So साइलेंस जो है बड़ी जरूरी चीज होती है जिंदगी में. दिमाग की छुट्टी की अभी बात करते हैं. ब्रेक ले लें. वो कह रहे हैं ब्रेक ले लें. शहनाज मिनल्ला हमारे साथ मौजूद है. आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें. टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक एंड कमिंग बैक.